हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। तो मोशन क्या है? जैसे मैं अपने इस हाथ को यहाँ मूव करा रही हूँ, मेरा हाथ किस में है? मोशन में है। ये पेन किस में है? मोशन में है। ये पेन अब मैंने यहाँ रख दिया, तो ये किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। मैंने इस पेन को फिर से मूव कराया, तो पेन किस में हुआ? मोशन में हुआ। तो जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वह क्या कहलाती है? मोशन में कहलाती है। जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वह क्या कहलाती है? मोशन में कहलाती है। और जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो वह क्या कहलाती है? रेस्ट में कहलाती है। तो हम मोशन की डेफिनेशन जानेंगे कि मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो मोशन की डेफिनेशन होती है बच्चों, whenever a body, साथ के साथ लिखते चले जाना, नोट्स बनाना बच्चों। whenever a body changes its position with respect to stationary objects. Whenever a body changes its position with respect to stationary object and time के रिस्पेक्ट में, और किसी स्टेशनरी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो पहले से स्टेशनरी है, पहले से रुका हुआ है, पहले से स्थिर है, पहले से रेस्ट में है, ऐसे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम कोई अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वह क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज रेस्ट। जस्ट अपोजिट इसका, whenever a body doesn't changes its position with respect to stationary object and time. ओके, सो मोशन के टाइप कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एंड द सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। सो टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन and the second one is non-uniform motion. Uniform motion क्या होता है? A type of motion in which body travels equal distance in equal interval of time. जैसे suppose we are on the A point at a time 8 AM. Okay, now we travel a distance 2 kilometer in 2 hours at a 10 AM. Now we again travel a distance 2 kilometer in 2 hours at 12 PM. So now we covered equal distance in equal time interval. Equal distance in equal time interval. So our motion is called uniform motion. Our motion is called uniform motion. If we travel 2 kilometer in 8 and 10 AM, and again we covered 2 kilometer in 3 hours. Here 2 hours and here 3 hours. So we didn't travel equal distance in equal time interval. So our motion is called non-uniform motion.
So from here we can define uniform motion is a type of motion यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाए बच्चों, क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन ए टाइप ऑफ मोशन इन which body travels equal distance in equal interval of time. Okay. So example of uniform motion is motion of planets around sun, motion of planets around sun, and motion of hands of clock. Now non-uniform motion, जस्ट अपोजिट कर दो बच्चों. फ्रॉम दिस डेफिनेशन, ए टाइप ऑफ मोशन इन which body travels unequal distance in equal interval of time. So example of these types of motion, बोलिए बच्चों. कार ट्रैवलिंग या कार मूविंग ऑन ए रोड, a ball falling from a building, so now we will describe what is distance and what is displacement. डिस्टेंस क्या होगा बच्चों और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. डिस्टेंस जैसे कि सपोज वी ट्रेवल फ्रॉम ए पोजिशन टू बी पोजिशन इन दिस मैनर, एंड नाउ वी ट्रेवल फ्रॉम दिस एंड दिस. सो वी कवर longest distance from here, and one distance is this, and one. These are three paths, one path, two path, three path. These all are distance from A to B. Okay, these all paths are called distance. These all three paths are called distance from A to B. Okay, but only one distance is called displacement. And what is that distance? This distance is the shortest distance between initial point and final point. The shortest distance from A to B is this path number second. So this is called displacement. And these A to B 3 and A to B 1 and 2 all are called distance, and only one shortest path is called displacement. ओके, सो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाती है यहाँ से? डिस्टेंस की हो जाती है डेफिनेशन टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम A to B, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. Okay, for distance may be equal and always greater than from displacement. Okay, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है. देखिए यहाँ बराबर है एंड हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा कभी नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई. ओके, एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो एसआई यूनिट है वह क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, इसकी भी मीटर. ओके ओके, सो आगे क्या हम कल पढ़ते हैं, और आज का हम टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी.